Hello students, today we are going to talk about Ruskin Bond's story, The Meeting Pool. Ruskin Bond is a prolific Indian writer in English with many stories to his credit. And the story, The Meeting Pool, conveys the message that life goes on, come what may. The story is in fact in the form of recollections by Rusty, who is the narrator in this story. Rusty, Anil and Somi. Rusty, Anil and Somi. Somi, Anil and Rusty. They were close friends, and Anil was a wild and little dangerous boy. He was often moody and impulsive. Impulsive कौन होते हैं? जो अपने मन के हिसाब से चलते हैं. They are called impulsive. तो अनिल जो है वो क्या था? मूडी था, impulsive था. And he had an animal charm. है ना? उछल कूद ये वो उसको बहुत पसंद था. Somi on the other hand was sensitive, gentle in his ways. However, both of them shared a similar sense of fun, and they had an instinct for adventure. Rusty was just one who involved in the adventure chosen by Anil and Somi. तो रस्टी तो क्या था? अपने आप को उस सब में इन्वॉल्व कर लेता था जिसमें सोमी और अनिल इन्वॉल्व होते थे. जो एडवेंचर सोमी और अनिल चूज करते थे उसमें रस्टी भी इन्वॉल्व हो जाता था. रस्टी once discovered a pool which was later called रस्टी pool, है ना? क्योंकि उसको रस्टी ने डिस्कवर किया था. तो this pool was located in the dense hill forest among the salt trees surrounded by steep rocks and cliffs. So the trio मतलब तीनों जने, they used to play and swam in its water. Somi used to swim quite beautifully, whereas Anil would swim with much vigor, for he had long legs and arms. है ना? अनिल की बहुत लंबी टांगें थी, लंबी बाजू थी, उसके हाथ पांव लंबे थे, तो वो ज्यादा बड़ा एक विगर से, बहुत उत्साह से तैरता था, है ना? तो रस्टी डाइव्ड ऑफ ए रॉक एंड यूजुअली लैंडेड ऑन हिज स्टमक. रस्टी कहाँ से छलांग मारता था? रॉक से छलांग मारता था और फिर वो अपने स्टमक से वापस लैंड करता था. द पूल वाज फुल ऑफ स्लिम वाटर. The pool was full of slim silver fish and तो वहां पर बहुत सारी फिश थी, बहुत सारी मछलियां थी. तीनों जने कोशिश करते थे उनको कैच करने की विद रोड एंड हुक एज वेल एज अ बेड शीट. कई बार बेड शीट भी यूज करते थे मछलियों को पकड़ने के लिए, बट इन वेन. बट वंस अनिल गॉट इट डन एक्सप्लोडिंग सम गन पाउडर. एक बार अनिल ने कुछ गन पाउडर डाला, उससे उसने उन मछलियों को पकड़ा, है ना? तो next they tried to enlarge the pool by building a dam across one end, but the torrent of the monsoon rain water busted. एक बार उन्होंने वो उसको एक्सटेंड करने की भी कोशिश की, डैम बनाने की कोशिश की, एक एंड पे उस पूल को एनलार्ज करने की कोशिश की, लेकिन मॉनसून में जब पानी का बहाव बहुत तेज आता है तो उससे वो डैम फिर टूट गया. They had then the fun of wrestling on a strip of land. फिर वो वहां पर रेसलिंग भी खेलते थे, है ना? कुश्ती भी खेलते थे, कुश्ती करते थे. एंड दे एंजॉयड बफेलो राइड्स. ठीक है? तो वो वहां पे भैंस के ऊपर बैठते थे और चलते थे जैसे गांव के बच्चे करते हैं. तो आई टोल्ड यू दैट दिस स्टोरी इज जस्ट ए रिकलेक्शन.
of childhood memories. They used to bath in the pool by moonlight. Moonlight में वो उस तालाब में नहाते थे. Those were the happy days when they were mere boys, the children of mud and sand. They used to, है ना, छोटे थे तो सारा दिन कीचड़ में और इन सब चीजों में, मिट्टी में खेलते रहते थे. Play near the, they used to play near a pool what had been discovered by Rusty, and the pool was located in the dense hill forest. So those were those happy days of Rusty, Anil and Somi. But they had to depart once. तो बचपन बीत गया, फिर एक दिन तो उन्होंने वहां से जाना ही था, है ना. They had to depart. Somi suggested that they should next meet at the pool in 10 years time. कि अगले 10 साल में जो है वो उस पूल पे दोबारा आएंगे, है ना. तो उस पूल पे दोबारा आएंगे. बोथ रस्टी एंड अनिल टू ज्वाइंट दिस प्लेज, है ना. They too joined the promise that they would meet at the pool at midday on the 5th on April 1964. Over the years following, the company of the trio broke up, है ना. समय के साथ साथ क्या हुआ, तीनों की कंपनी जो है वो टूट गई. सब अपने अपने काम में लग गए, बड़े हो गए, है ना. Now Rusty finds everything changed, है ना. Actually, they used to spend their childhood days here in the pool. Somi, after his matriculation, had joined the military service. वो मिलिट्री में चला गया सोमी, and remained there in his unit. He has developed a fierce military उससे बड़ी बड़ी उसने military style में मुच्छे बना ली. Anil on the other hand had been a successful businessman, है ना. अनिल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया. His nature has changed and he has become a fierce, cruel, impulsive, angry man. अब बहुत गुस्से वाला, ऐसे cruel सा बन गया. Both Anil and Somi still possess the sense of fun and adventure in them. अनिल और सोमी में अभी भी वो सेंस ऑफ फन है ना. तो इन देयर मैनर एंड देयर zeal, time has changed everybody. ठीक है. The young simple minded boys have become fierce young men of life. जो सिंपल से बच्चे होते थे अब वो जवान व्यक्ति बन गए. एंड दे हैव इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन वेरियस एक्टिविटीज, और बहुत सारी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो गए, है ना. तो अब क्या होगा, nobody sees each other, है ना. They might have been living their lives the way they wanted. रस्टी kept his pledge, लेकिन रस्टी ने अपना प्रॉमिस रखा, क्योंकि रस्टी ने कहा था ना कि 10 साल के अंदर अंदर वो दोबारा उस पुल पे आएंगे. ऑन द 5th of April 1964 में जब उन्होंने प्लेज ली थी. Narrator seems to be more thoughtful and meditative. He speculates how time passes away, carrying all the pledges with it. उसको लगता है समय कैसे बीतता चला जा रहा है तेज स्पीड से, उसमें सारी pledges भी जाई जा रही हैं. So before coming to town, Rusty again stretches his look to the landscape, है ना. Suddenly he hears some mysterious sounds. तो Rusty found the stream without any water. अब वो वहां पहुंचता है तो देखता है उस stream में पानी है नहीं. Over the years it too had changed its course of time. pool की direction भी change हो गई. As he had just begun to return disappointedly, जैसे ही वो निराश होकर वापिस आने लगता है तो Rusty finds a group of boys playing in the pool water of stream. तो रस्टी को आवाज सुनाई देती है पानी की, है ना. He hears the sound of splashing of water and shouting of boys. पास में ही कोई दूसरा पूल होता है वहां से. There were half a dozen boys playing in the water of another pool. So Rusty's memories rolled back, है ना, and his eyes were seeing another team of Somi, Anil and he himself
एंड द कंफर्ट लविंग बुफेलोज दे आर। तो अब वो उसको लगता है जो और लड़के हैं वो वही तो हैं, है ना, उनका बचपन ही तो है। तो है ना, approaching there, Rusty finds a group of boys playing in the pool water upstream, but this is another pool. Rusty imagines as if he and his two close friends were there. है ना? Or buffaloes are also there. So this scene reminds him of the continuity of life. तो इस सीन से उसको क्या याद आता है कि जिंदगी तो चलती ही रहती है. Yes, the life continues. The absolute transformation of forest pool and its vicinity makes him believe, है ना, पूरा का पूरा चेंज हो गया, उस फॉरेस्ट के अंदर जो पूल था वो सारा चेंज हो गया, वहां आसपास की सराउंडिंग्स चेंज हो गई और जिंदगी तो चल ही रही है ना। तो उसको अब यहाँ पे जब इतने साल के बाद वापिस आता है तो उसको लगता है कि भाई चेंज इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, है ना, जिंदगी का जो बेसिक प्रिंसिपल है सर्वाइवल का वो क्या है, चेंज, बदलाव है, तभी तो वो व्यक्ति जिंदा है, तभी तो लाइफ संभव है ना। सो सर्वाइवल इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ चेंज. So this is this poem, this story is just a recollection of the childhood, and when you get old, I mean when you जब आप बड़े होते हो तो आपको क्या लगता है कि भाई क्या आपने सबक सीखा, आपके अनुभवों से आपने जिंदगी में जो बीते साल जिंदगी के उन बीते सालों से आपको क्या समझ आई, यही समझ में आई कि बदलाव ही जिंदगी का मेन प्रिंसिपल है, इसी से ही सर्वाइवल पॉसिबल है ना. सो दिस वाज अ सिंपल स्टोरी एंड इट इज हैविंग द रेमिनिसेंसेस ऑफ past life. So he is of a Rusty who is the narrator. He is one of the friends, है ना, जो 3 फ्रेंड्स थे उनमें से एक फ्रेंड कौन था, रस्टी था. बचपन में कैसे वो वहां खेला करते थे पूल में, कैसे वो मछलियां पकड़ते थे, कभी चद्दर से कभी रोड से, है ना, और कैसे कूदते थे, कौन जना रोक से सीधी छलांग मारता था, वो अनिल की लंबी लंबे हाथ बाजू थे तो वो ऐसे बड़ा कॉन्फिडेंट हो गए, बड़ा एंथुजियास्टिक हो के वो उसमें छलांग मारता था, है ना. फिर वो कैसे बफेलो राइड करते थे भैंस के ऊपर बैठ के और चलाना चलना, है ना, बिकॉज द बफेलोज दे यूज्ड टू कम देयर फॉर having bath and all that. तो बात क्या है कि how they used to enjoy their childhood days. और फिर समय बीतता गया, आफ्टर मैट्रिकुलेशन क्या हुआ, 10th क्लास के बाद सब जने अपने अपने हिसाब से सेट हो गए, कोई बिजनेस की लाइन में चला गया, कोई मिलिट्री में चला गया, है ना. रस्टी बहुत सेंसिटिव सी टाइप का था, इसने पहले प्लेज ली थी कि भी 10 साल बाद दोबारा वापस आएंगे इसी प्लेज इसी पूल पे. तो और तो दोनों फ्रेंड्स आते नहीं, रस्टी आता है. रस्टी जब वहां आता है तो वो देखता है कि वो पूल तो वहां है ही नहीं, बेचारा फिर वापस जाने लगता है थोड़ी देर वहां रह के, और जब वापस जाने लगता है तो उसको कहीं से पानी की आवाज आती है, छप छप पानी की आवाज आती है. तो फिर वो उधर मुड़ के देखता है तो उसको लगता है कि अरे भाई यहाँ तो बच्चे खेल रहे हैं. फिर उन बच्चों में उसको अपना बचपन याद आता है और उसको लगता है ये अनिल और सोमी हैं, दूसरे 2 लड़के जो हैं, और एक मैं खुद हूँ, है ना. तो चेंज भी हो गया वहां पे, सारा पूल की डायरेक्शन भी चेंज हो गई. तो उसको लगता है कि अरे भाई सही बात है क्या, कि चेंज इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल. तो ये एक बहुत अच्छी सी स्टोरी थी. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.